السلام علیکم۔ جی أ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سر؟ اللہ کا شکر ہے، بالکل خیریت ہے۔ آج ہمارے ساتھ منیب مسعود ہیں اور ان کی کتاب ریسنٹلی پبلش ہوئی ہے، تو آج ہم ان کے بارے میں جانیں گے۔ تو منیب مسعود، سب سے پہلے آپ اپنے بارے میں بتائیے۔ جی میں ڈسٹرکٹ کٹک کے ایک دیہاتی ایریا میں رہتا ہوں۔ اسکول جاب ہے میری، ایک گورنمنٹ سیکٹر میں ایجوکیٹر ہوں، اور ٹھیک۔ اسٹڈی چل رہی ہے ساتھ ساتھ، تو کبھی کبھی لکھتا بھی رہتا ہوں تھوڑا۔ ہیلو۔ جی جی۔ جی سر، آواز کٹ گئی تھی۔ اچھا اچھا، میرا آنسر کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ نہیں سر، ہاف ریکارڈ ہوا ہے۔ جی میں یہ بتا رہا تھا کہ گورنمنٹ سیکٹر میں ایجوکیٹر بھی ہوں، اور اسٹڈی میری ریسنٹلی کمپلیٹ ہوئی ہے، اور ڈسٹرکٹ اٹک میں ہی میں اپنے گاؤں میں ہی رہتا ہوں، اور اس کے ساتھ کبھی کبھی جو ہے لکھنے کا شوق بھی ہے، ساتھ کچھ نہ کچھ پڑھتا رہتا ہوں۔ یہ ٹھیک۔ ٹھیک۔ تو مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ جو ہے وہ کتابوں کی طرف انٹرسٹ ہے، اس وجہ سے آپ لکھنے کی فیلڈ میں آئے؟ جی لکھنے کی فیلڈ میں آنے کے جو وہ تو بالکل، یعنی میں آپ کو اگر بتاؤں تو شوق میرا بچپن سے ہے، کہ ٹھیک۔ شروع میں جہاں سے یہ چیز سٹارٹ ہوئی تھی نا، وہ یہ تھا کہ چھوٹی عمر میں تعلیم و تربیت ایک رسالہ آیا کرتا تھا۔ جی جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی بالکل۔ جی تو اہ، وہ بیسک تھی میری، جہاں سے یہ میرا پڑھنے اور لکھنے کا شوق شروع ہوا۔ اس کے بعد یہ ہے ٹھیک۔ کہ لکھنے کا سٹارٹ اس طرح ہوا تعلیم و تربیت پڑھنے کے بعد، کہ میں کچھ اپنے میرے جو فرینڈ زون تھا، اس کے اندر یہ بات جو ہے مشہور تھی کہ میں جب کوئی سٹوری سنایا کرتا تھا، تو وہ میں یعنی وداؤٹ اینی ویٹ آف اے سیکنڈ، جو ٹھیک۔ مجھے ٹاپک دیا جاتا تھا یا جو مجھے کریکٹرز دیے جاتے تھے، جس طرح کا پلاٹ مجھے کہا جاتا تھا، میں اس پہ سٹوری بنا کے اسی وقت سنانا شروع کر دیا کرتا تھا۔ تو گڈ۔ وہ پھر آہستہ آہستہ جب میں نے پڑھنا شروع کیا، کچھ میری اردو بہتر ہوتی گئی، تو آہستہ آہستہ کرتے کرتے جو ہے وہ یعنی تھوڑی آفیشیل رائٹنگ جو ہے اس سائڈ پہ میں آیا۔ 10 سے 15 سال یعنی اس میں مجھے لگے ہیں۔ ٹھیک۔ تو سر آپ کی کتاب ہے ادب و تنقید، تو سر اس کو لکھنے کی کیا وجہ تھی؟ بیسیکلی مجھے کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ میں لکھتا رہتا ہوں، اور اس کا کوئی جو ہے وہ ٹائم پیریڈ کوئی ایگزیکٹ نہیں ہوتا کہ کتنا عرصہ لگے گا، کیا لکھوں گا، کب لکھوں گا۔ جب ٹھیک۔ کبھی ذہن میں کوئی چیز آ جاتی ہے، کوئی ٹاپک جو ہے وہ میں فیل کرتا ہوں کہ اس پہ میں کچھ لکھ سکتا ہوں، تو کچھ نہ ہوں۔ کچھ میں لکھ سکتا ہوں۔ کچھ میری رائٹنگز جو ہیں وہ بکھری ہوئی تھیں، کچھ چھوٹی شارٹ سٹوریز تھیں، صحیح۔ افسانے تھے، یعنی کہ ساتھ کچھ آرٹیکلز تھے، اور کچھ تنقیدی مضامین تھے، اور وہ جی بکھرے پڑے تھے، تو میں نے سوچا کہ ان کو یعنی ہمیشہ رکھنے کے لیے یا سیو کرنے کے لیے مجھے کچھ چیزیں جو ہیں جو میری اپنی پسند کی تھیں، میں ان کو جمع کر کے اور ایک بک جو ہے وہ بنا دوں۔ تو اس صورت میں جو ہے یہ ادب و تنقید کے نام سے، یعنی افسانوں، تنقیدی مضامین وغیرہ کا مجموعہ جو ہے یہ سامنے آیا۔ ٹھیک۔ ٹھیک۔ سر اس کتاب کے بارے میں آپ بتائیے کہ ان میں آپ نے بتایا ابھی تنقیدی کچھ مضامین شامل ہیں، کچھ افسانے شامل ہیں،
तो सर इसके हवाले से कोई आप अफ़साने के बारे में कुछ बताना चाहें कि आपने उनका मोटिवेशन क्या रही जब आपने उनको लिखा? या आपने जो है वो तनकीदी मज़ामीन लिखे तो उसकी वजह क्या रही? तनकीदी जो मज़ामीन थे उनकी जो बेसिक यानी रीज़न थी वो ये थी कि जब मैं एमफिल में सिविलाइजेशन की स्टडी कर रहा था तो उस वक्त हमें काफ़ी सारे जो है यानी क्रिटिक उस वक्त भी हमने पढ़ी है और उसमें ख़ास तौर पे सलीम अहमद का मुताला भी हमने किया है जो ठीक, कि बहुत मारूफ यानी नक्काद में से आप उनको कह सकते हैं। ठीक, इसके साथ साथ अगर नावल या कोई शॉर्ट स्टोरीज की तरफ मैं आऊँ तो उसकी बेसिक वजह जो है वो ये थी कि हमारे मौजूदा दौर में जो मसाइल हैं या सही, हमारी जो माशरे के अंदर हमें जिन चीज़ों का सामना करना पड़ता है आम तौर जी, पे मैं जब भी कोई स्टोरी पढ़ा करता था या कहीं पे देखा करता था तो एक टिपिकल प्लॉट होता था एक टिपिकल उसका स्टार्ट यानी बिगिनिंग क्लाइमैक्स और एंड और वो चीज़ जो है वो मुझे पसंद नहीं आती थी यानी मेरे ज़हन में 2 चीज़ें आती थी कि अगर हम सैड एंडिंग की तरफ जा रहे हैं, तो वो एक्चुअली ऐसी सैड हो कि फिर उसके अंदर यानी हम दूसरी साइड की तरफ ना जाएँ। या इसी के ठीक, बरअक्स अगर कोई एंटरटेनमेंट के लिए कोई सिर्फ़ लोगों को यानी उनके मिज़ाज के अंदर कोई खुशी लाने के लिए अगर हम कोई स्टोरी लिख रहे हैं जो हैप्पी एंडिंग जिसकी एंडिंग जो है वो यानी कि अच्छी है या पूरी एक स्टोरी जो है वो हेलो, 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 जी जी जी, रिकॉर्डिंग चल रही है जी, जी सर। तो बीच में वो डिस्कनेक्ट हो चुका था मैं इन शॉर्ट आपको बताता हूँ कि जो मेरे वक्त के जो राइटर्स लिख को मैं चेंज करना चाहता था तो ये बेसिक बनी कि मैंने सोचा कि जो मेरी अपनी सोच है मैं उसको चीज़ लोगों के सामने आए तो ये बेसिक जो है थी कि मैंने शॉर्ट स्टोरीज या अफसानों की तरफ जो है थोड़ा सा मेरा रुझान पैदा हुआ और मैंने कुछ लिखी हैं चीज़ें। ठीक। सर आपका फ़ेवरेट कैरेक्टर या फ़ेवरेट बुक जो आप शेयर करना चाहें, जिससे आप इंस्पायर हो गए?
तो मुझे नावल बहुत ज़्यादा पसंद है। वो हमारे बैचलर में सिलेबस में भी शामिल था। और अगर पोइट्री की तरफ आए तो अल्लामा इकबाल की पोइट्री जो है वो मुझे काफ़ी पसंद है। और एक किताब है नसीर जो हैं उनकी गज़लियात की किताब पैमाने शब, वो मुझे काफ़ी पसंद है। तो यानी चीदा चीदा चीज़ें जो हैं मुख्तलिफ राइटर्स की से वो मेरा डिसीजन जो है वो ठीक ना हो। जी ठीक। अच्छा सर, आप ये बताइए कि पाकिस्तान में पब्लिशिंग और लिटरेरी जो इंडस्ट्री है, इसके हवाले से आप कुछ मतलब बताइए, क्या पाकिस्तान में किताब पब्लिश करवाना आसान है? जी पाकिस्तान तो अगर सर आपकी आपको आवाज एक कट गई है, आप प्लीज दोबारा से जी बताइएगा। जी मैं रिपीट करता हूँ कि पाकिस्तान में अगर आप बुक पब्लिश कराने जा रहे हैं तो दो तीन जो है वो आपको मसाइल बहुत ज़्यादा सामने आपके आते हैं। पहला है एडिटिंग और डिज़ाइनिंग। यानी आपको अगर ठीक। एक अच्छा एडिटर नहीं मिला तो आपकी किताब के अंदर गलतियां इतनी होंगी या आप उसको समझा नहीं पाएंगे कि आप कैसा लिखवाना चाह रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है इस प्रोसेस से। अगर आप देकर आए तो नेक्स्ट जो है वो प्रिंटिंग है। और ठीक। प्रिंटिंग प्रेस जो है वो अगर आप मार्केट में जाएं, लाहौर जाएं, रावलपिंडी जाएं या इन मेन सिटीज की तरफ जाएं, तो सबसे पहले तो आपको यानी एक ऐसी मार्केट का सामना करना पड़ता है कि अगर आप किसी अच्छी क्वालिटी के पब्लिकेशन की तरफ जा रहे हैं तो वो किसी न्यू राइटर को तो यानी देखते ही नहीं है। यानी जी। उनका एक माइंडसेट बना हुआ है कि हाँ इसकी 20-30 किताबें आ चुकी हैं या इसको इतने थाउजेंड पीपल जो हैं वो फॉलो करते हैं तो हम इसकी बुक हमारी इस आज की सोसाइटी में कि अगर कोई बुक हमने लिख लिया है या हमने कोई काम स्टार्ट किया है और हमें वो लग रहा है बेहतर या हमने उसको यानी रिव्यू भी करवा लिया है, लेकिन उसके बावजूद पब्लिश कराना जो है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ठीक। तो सर आपका दास्तान के साथ किस तरह से राब्ता हुआ? दास्तान के साथ बेसिकली मैंने दास्तान की एडवर्टाइजमेंट देखी थी। कुछ चीज़ें मैंने लिखी हुई थी जिनको पब्लिश कराना चाह रहा था। तो ठीक। इसी तरह नेट सर्फिंग के दौरान एक एड मेरे सामने आया और दास्तान ही के ज़रिए से पहली दफ़ा जो है मुझे यानी इस ऑनलाइन पूरे सिस्टम का पता चला कि ये काफ़ी रिसेंटली यानी पिछली एक दिहाई से तकरीबन हमारे मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता जो है ये ऑनलाइन पब्लिशिंग और ये चीज़ स्टार्ट हो रही है और काफ़ी बेहतर हो चुकी है। तो ये जो मसाइल मैंने आपको पहले बताए थे कि आपको पहले बड़े शहरों का सफ़र करना पड़ता है, फिर आपको अच्छी जी। कंपनी नहीं मिलती। तो उन जी। मसाइल से बचते हुए दास्तान जो है इनसे रब्ता किया और वो जो जो मसाइल वहाँ मुझे पेमेंट हुई, अभी तक मैंने दास्तान का ऑफिस भी नहीं विजिट किया और जिस किस्म की मैं किताब चाहता था वो किताब पब्लिश हो के जो है वो सामने भी आ गई। तो बेसिकली यानी आप घर बैठ के अपने मोबाइल से अगर अपनी पूरी बुक पब्लिश करके दुनिया के सामने लाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में ये एक बेस्ट वे है इस तरह करने का। यानी सर आपका एक्सपीरियंस दास्तान के साथ काम करने का अच्छा रहा? जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छा रहा। मैं नेक्स्ट भी बल्कि सोच रहा हूँ मेरे कुछ बुक्स जो हैं कि उनको मैं दास्तान के साथ कमिंग ईयर्स में जो है वो लेकर चलूँ, हमारी पार्टनरशिप जो है वो इसी तरह जो है वो कायम रहे।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे यंग राइटर्स को, या किसी भी हवाले से? अगर आप पढ़ते हैं तो आप अच्छे राइटर्स को पढ़ें। आप ठीक। जो राइटर्स आप मशहूर हैं, या जो राइटर्स जो हैं जिनको हम जिनके नाम सुनहरी हरूफ में लिखे जाते हैं, अगर हम उनको पढ़ेंगे तो काफी सारी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। फिर उसके ठीक। बाद सेकंड ये है, सर, सेकंड पे आपका जो है वो आवाज ठीक नहीं आ रही। सेकंड पॉइंट प्लीज रिपीट कर दीजिए। ओल्ड और न्यू राइटर्स जो हैं दोनों को साथ लेके चलें, क्योंकि जहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं कि क्लासिकल राइटर्स ही बेहतर जानते थे, वो आपको इस मॉडर्न एरा में नहीं मिल सकती। लेकिन कुछ पॉइंट्स, कुछ थॉट्स आपकी, कुछ फिलॉसफीज ऐसी हैं जो कि पोस्ट मॉडर्न एरा के राइटर्स जिनको सामने ला रहे हैं, जो इनोवेटिव एक चीज हमारे सामने आ रही है। तो जब तक पिछली और अगली या मौजूदा सूरत हाल पे हमारी नजर नहीं होगी, हम इन राइटर्स को नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम जी। उस लेवल की चीज या उस म्यार की चीज को कभी भी जो है वो सामने नहीं ला सकते। ठीक। थैंक यू सो मच सर, सर आपने वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया जी। ओके सर, थैंक यू, मोस्ट अल्लाह वेलकम। हाफिज। अल्लाह हाफिज।